Bismillahirrahmanirrahim. Associate Degree Program Commerce, Government Degree College for Women, Satellite Town, Bahawalpur. The subject is Business Communication, ADC 01204. First of all, we will define simply what is communication. The exchange of information, thoughts, understanding and imagination among different persons. Any person communicating means any person exchanging his words, his thoughts, his informations with any other person. This communication may be of verbal type or of non-verbal type. Verbal communication means communication in written form, and non-verbal communication involves oral communication and expressions and body language type of communication. As our subject is business communication, we say that when simple communication involves the word business, it will definitely be related with a business. Business deals with selling, buying, demanding, supplying, and earning profit, earning income, retaining customers. Such type of communications are observed in business. So we can say that business communication means flow of information, perceptions within a business organization or outside the organization among different parties. On this basis, we can divide business communication into two categories: internal communication, that will be within the organization, and external communication between different organizations. When we talk about effective business communication, we can say that business communication is lifeblood of any business. All matters depend upon the way business communicate with its stakeholders. If a business has a strong communication skill, that business can retain a major market share. We start from internal communication. When talking about internal communication, first point is setting objectives and goals. Each business has a target to get maximum share in market, that is market dominance. The business target is implies satisfaction. The business target is providing good services to its consumers, customers, and to maintain the product quality. For all these objectives, for all these targets, for all these goals, business needs the best type of communication among its workers, from top to low, top to bottom, and bottom to top. Second point is implementing decisions, making and implementing decisions. Decisions are normally made on the basis of prevailing circumstances of any organization. Facts are evaluated, alternative ways are discussed, and after doing all these things, final decision is taken. कि बिज़नेस में जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी हालात होते हैं, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए डिसीजन लिया जाता है, और इस डिसीजन लेने में उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मैनेजमेंट है वो तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं. जब फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का. फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, बिजनेस अगेन नीड्स कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन होगी फ्रॉम अथॉरिटीज़ टू इट्स वर्कर्स, कि किस तरह से उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उस टारगेट को अचीव करना है. नेक्स्ट आता है अप्रेजल. व्हाट इज़ अप्रेजल? जब बिज़नेस रनिंग पोजीशन में होता है तो उसने अपनी तमाम जो सिचुएशंस होती हैं उसका एनालिसिस साथ साथ करते रहना होता है, उसकी अप्रेजल करते रहना होता है कि जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेट की जाएगी, उस प्राइस से क्या वो सेल किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट कवर हो जाएगी, प्रॉफिट का रेशो कितना होगा, और प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसी रहेगी, इन्वेंट्री लेवल्स कितने हैं. ये तमाम चीज़ें अप्रेजल में साथ के साथ डिस्कस होती हैं, साथ के साथ इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स कम्युनिकेशन. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट जो मौजूद है उसमें मज़ीद इनोवेशंस लाने की हमेशा कोशिश की जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए ताकि कंपैटिटर के साथ मार्केट का शेयर रिटेन किया जा सके. तो इस मकसद के लिए जब हम देखते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, टेक्नोलॉजी बेहतरीन आपके पास होनी चाहिए,
प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है और अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है जहाँ पर उसकी बेहतरीन सेल हो सके। इन तमाम चीज़ों के लिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली जारी रहती है। कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट जो पॉइंट है वो है कि कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के दरमियान में एम्प्लॉयर ने अपने डिसीजंस को, अपने रूल्स को कन्वे करना है एम्प्लॉइज़ तक, तो वो रिटन फॉर्म में नोटिफिकेशंस होंगे, नोटिसेस होंगे, लेटर्स की फॉर्म में वो जारी करेंगे और वो तमाम एम्प्लॉइज़ के नॉलेज में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह से एम्प्लॉइज़ को ड्यूरिंग जॉब डिफरेंट इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। वो उन तमाम इश्यूज़ से मुतल्लिक या उन्हें किसी चीज़ के बारे में कोई नो हाउ चाहिए या उन्हें कोई क्वेरी है उसके बारे में वो क्लियर करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। वो कोई कंप्लेंट अपनी करना चाहते हैं तो वो भी रिटर्न फॉर्म में सबमिट करवा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन की ही डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, व्हाट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन? आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन अपने आउटसाइड स्टेक होल्डर से जब कम्युनिकेट करती है, दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले एम्प्लॉइज से हम बात शुरू करते हैं। व्हेन हायरिंग डिफरेंट एम्प्लॉइज फॉर वैकेंसीज़, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होती है वो एडवर्टाइजिंग वैकेंसी से स्टार्ट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ मौजूद हैं, उन्हें एडवर्टाइज़ करना है, न्यूज़पेपर में करना है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर करना है, तो वो कम्युनिकेशन इस ज़रिए से होगी। जब एडवर्टाइज़ हो गया तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि उनको इंटरव्यू की कॉल दी गई है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। उसमें अगेन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है कि आप इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू ले रहा है, उससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था उसकी बेस पर सिलेक्शन होती है कैपेबल एम्प्लॉइज़ की। उस सिलेक्शन में जो पैनल होगा, इंटरव्यू पैनल होगा, उन तमाम लोगों की बाहमी रजामंदी और उन तमाम लोगों की ओपिनियन, उनकी आपस की कम्युनिकेशन से ये फाइनल डिसीजन होगा फॉर सिलेक्शन ऑफ कैपेबल एम्प्लॉइज़। जब सिलेक्शन हो जाएगी तो डेफिनेटली उस एम्प्लॉय को हायर करने के लिए उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा और वो रिटन फॉर्म में होगा, वो उसको अब प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो अंडर द कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। और उसके बाद इनिशियल ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है एम्प्लॉइज़ को जब हायर किया जाता है। उस इनिशियल ट्रेनिंग में उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, उनकी बेसिक जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग सेशन भी कम्युनिकेशन के अंडर आएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि किसी भी बिज़नेस की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आती हैं जब वो अपनी वैकेंसीज़ पर न्यू एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर डीलिंग। कस्टमर डीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज़ जितनी अच्छी कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपने कस्टमर्स के साथ होगी उतना ज़्यादा वो बिज़नेस फ्लोरिश करेगा। बिकॉज सिर्फ उस एक कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आप अपना पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं उस कस्टमर के थ्रू। जहाँ जहाँ वो आगे कन्वे करेगा आपके कस्टमर्स की चेन बनती जाएगी। सो बिजनेसेस आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कम्युनिकेशन विद देयर कस्टमर्स। दे ट्राई टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स, दे try to cope with all complaints of the customers, they always listen positively to their customers कि हर तरह से वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। तो जिस भी फॉर्म में कस्टमर से डीलिंग हो रही है दैट इज़ कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है निगोशिएशन विद द सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अब सप्लायर्स से जो आप बिज़नेस के लिए सप्लाईज परचेज़ कर रहे हैं, डिफरेंट उससे अपने रॉ मटेरियल है या बाकी सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, उसके लिए जो आपकी डीलिंग हो रही है, जो आप उसके साथ फाइनली तय करते हैं, प्राइस तय करते हैं, ड्यू डेट तय करते हैं, कैश पेमेंट होगी, क्रेडिट पर होगी, वो तमाम चीज़ें जो फाइनल की जाती हैं, जो तय की जाती हैं, वो रिटन फॉर्म में होंगी। डेफिनेटली इट विल कम अंडर कम्युनिकेशन। इसी तरह से उसमें टर्म्स ऑफ पेमेंट्स आ जाएंगी जो कि अभी मैंने कहा कि कैश और क्रेडिट कोई भी हो सकती है। जब हम सप्लाईज की बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि हम देखते हैं कि बिज़नेस को रन करते हुए बहुत दफ़ा फाइनेंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। फाइनेंस आप डिफरेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करें या प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से,
बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी होगी, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होगी, वो फाइल अब तैयार करके सबमिट करवानी होगी, प्रोसेस होगा, और अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कम्युनिकेट कर देगा उसके बारे में, और वो चीज़ फर्दर प्रोसेस हो जाएगी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में, डीलिंग विद इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कम्युनिकेट विद द इन्वेस्टर्स फॉर सेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस इन एग्रीमेंट, कि जब इन्वेस्टर्स के साथ डीलिंग होती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय पाती हैं। वो डेफिनेटली स्टार्ट में अगर वो औरली भी तय हो रही हैं तो एट दी एंड जब फाइनल डिसीजन हो जाता है तो उसका एक रिटन एग्रीमेंट तैयार होता है जिस पर दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होते हैं। वो एक कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में सेव हो जाती है दोनों पार्टीज़ के पास। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो जब बिज़नेस रजिस्टर होता है सेल्स टैक्स के हवाले से, तो बिज़नेस जब रनिंग पोजीशन में आ जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि बिज़नेस ने अपना इनकम टैक्स पे करना होता है। तो इनकम टैक्स के लिए गवर्नमेंट को अपनी इनकम की तमाम जो पर्टिकुलर्स हैं वो फाइल करवाने होते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास। तो इसके लिए भी जो प्रोसेस होगा दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन। सो एट द एंड वी कैन से दैट all matters of businesses comes under communication, whether the matters are within the organization or outside the organization, between the employer and employee, between the owner of one organization and the owner of other organization, between the business and the customer, between the government and the business. Any type of dealing comes under communication. So this is a very important topic students. आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या हैं या इंपॉर्टेंस बताएं कम्युनिकेशन की, तब भी आप ये सेम टॉपिक उसमें लिख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।